नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः पुष्टिमार्ग सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। સર્વપ્રથમ તો ખૂબ આનંદનો વિષય કે આપ બધા સુંદર રીતે બધા સત્સંગ મળીને કરી રહ્યા છો, તો એ આનંદનો વિષય. અને સાથે સાથે બધા જે આયોજકો જેમના જે નિમિત્ત બન્યા આ સુંદર આયોજનમાં, તો એ સૌથી પહેલાં તો આશીર્વાદ અને વધાઈના પાત્રો છે. કેમ કે એમના કારણે, જેમ અમારા રક્ષાબેન છે, કિશોરભાઈથી પણ વાત થઈ, હિનાબેન પણ સુંદર અહીંયા ધોળ ગાયો, તો શું આ બધા બીજા પણ જે કાર્યકર્તા જેમના જે નિમિત્ત બન્યા છે આ સુંદર આયોજન જે સત્સંગના કાર્યો માટે, તો એમને ખૂબ આશીર્વાદ ને બહુ આનંદ છે કે આવા સુંદર આયોજન કરી બધાને લાભ મળી રહ્યો છે. કે બધા પહેલાં પણ પૂર્વ પણ બધા આચાર્યો પધારીને અને ખૂબ આપને સૌને વચનામૃતોનો લાભ આપ્યું છે. તો ખૂબ આનંદનો આ વિષય છે. કેમ કે આ કલિકાલમાં પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે કે તે સદભાગ્યા મનુષ્યેશુ, કે સદભાગ્યવાળા મનુષ્ય કયા છે? તે સદભાગ્યા મનુષ્યેશુ કૃતાર્થા, એ મનુષ્ય કૃતાર્થ છે. કયા? કે જે સ્મરંતી સ્મારયંતી હરેર નામ, જે સ્મરંતી સ્મારયંતી હરેર નામ કલૌ યુગે. કે જે મનુષ્યો, જે વૈષ્ણવો, જે ભગવદીઓ આ કલયુગમાં પોતે સ્મરણ કરે છે અને બીજાને સ્મરણ કરાવે છે, એ જનો જે છે એ સદભાગ્યા મનુષ્ય શું છે? એ મનુષ્ય સદભાગ્યવાળા છે અને એ કૃતાર્થ છે, એમ પ્રભુ પોતે આજ્ઞા કરે છે. તો આ સુંદર આ સંજોગ, સુંદર અવસર, અને નવવિલાસના દિવસો પણ શરૂ થઈ ગયા છે, તો એમાં પણ આ સુંદર સંજોગ અને અવસર, અને સત્સંગની તો જે ઘડી જ્યારે સત્સંગ કરીએ એ ઘડી ઉત્તમ છે. તો આપણે આ સુંદર સત્સંગના અવસર આપણને પ્રાપ્ત થયો, તો કંઈક આપણે ભગવદ્ ગુણગાન, કંઈક આપણે વૈષ્ણવોના ચરિત્ર દર્શન કરશું, કંઈક આપણા આચાર્યોની આજ્ઞાનું આપણે શ્રવણ દર્શન, એમના વચનામૃતોને આપણે દર્શન કરશું. અવાજ એમ તો ક્લિયર આવે છે ને બધાને? બસ બસ બસ. તો કંઈક આપણે ભગવદ્ ગુણગાન, કંઈક આપણે વચનામૃતનું શ્રવણ કરશું. મારી કાંઈ વાત નહીં કરું, મને નોર્મલી પ્રવચનમાં એ જ કહું, મારી વાત કાંઈ નથી કરવી. કે જે ભક્તોએ જેવી રીતે જીવનમાં જીવ્યું છે એ તમને સામે મૂકી દઈશ, તરત આપણને ખબર પડી જાય. કેમ કે ભગવદીઓનું જે ચરિત્ર છે એ ચરિત્ર એમણે કંઈ કીધું નથી, એમણે કરી બતાવ્યું છે. તો એનાથી આપણને ઉપદેશો હાથમાં મળી જશે કે આમ જ કરવું જોઈએ. આચાર્યના જે વચનામૃતો છે, આચાર્યનું જે આચરણ છે, એનાથી આપણને ખબર પડી જાય આમ કરવું. એટલે મારે કાંઈ વાત નથી કરવી. જ્યાં તમે મને કોઈ બી જગ્યાએ અટકાવશો અને પૂછશો આ ક્યાં છે, તો તરત તમને બતાવી દઈશ કે જો અહીંયા મળશે. તો એવો જ આગ્રહ હું રાખું છું, અને એવી રીતે જ આપને પણ બધાને આનંદ થાય ભગવદીઓના ચરિત્ર સાંભળીને. તો આજનો સુંદર વિષય જે આપણે લેવાનો છે એ ભક્તિની દ્રઢતા કઈ રીતે. એમ તો મોટા મોટા ગ્રંથો પણ આપણને ઉપલબ્ધ છે, જેમ ભક્તિવર્ધની ગ્રંથ મહાપ્રભુજીનો છે, પણ એ ગ્રંથ હમણાં આજે આપણે નથી લેવાનું. આપણે શ્રી હરિરાયજી અમુક નાના નાના ગ્રંથો, શિક્ષાપત્ર ઇત્યાદિમાં મૂળ રૂપે કઈ વાત બતાવી, એ પ્રમાણે એ આજ્ઞા અનુસાર આપણે આજનો જે આપણો જે સત્સંગ છે એમાં આપણે લઈશું. તો આજે સૌથી પહેલાં તો આ જે વિષય છે ભક્તિની દ્રઢતા કઈ રીતે થાય, બરાબર. તો પહેલાં એક એક આપણે શબ્દોને થોડાક છૂટા પાડશું. સૌથી પહેલાં આમાં શબ્દ છે ભક્તિ. સૌથી પહેલા શબ્દ છે ભક્તિની દ્રઢતા કઈ રીતે થાય. આમાં ત્રણ આપણે પ્રશ્નો મૂકી શકીએ. સૌથી પહેલા તો વોટ ઇઝ ભક્તિ. સૌથી પહેલા વોટ ઇઝ ભક્તિ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે વાય દ્રઢતા, ભક્તિની દ્રઢતા વાય કેમ કરવી જોઈએ. અને ત્રીજો ક્વેશ્ચન હાઉ, વોટ, વાય અને હાઉ. આ ત્રણ આપણે પ્રશ્નો આજે આપણા સત્સંગમાં જોશું, તો જેનાથી વ્યવસ્થિત રીતે થોડુંક દ્રઢ થઈ જશે વાત. અને સત્સંગ હંમેશા આપણે જ્યારે કરીએ તો આપણે સત્સંગ પૂર્ણ થાય એના પછી અવશ્ય મનન કરવું જોઈએ કે આજના સત્સંગમાં આપણે શું દર્શન કર્યું, આજના સત્સંગમાં આપણે શું દર્શન કર્યું. એ મનન જ્યારે કરશો ને, તો તમે જ્યારે સત્સંગ સ્ટાર્ટ કર્યું હશે ને, એન્ડ ટિલ ધી એન્ડ, જે એન્ડ આવશે ને ત્યારે તમારામાં થોડુંક બદલાવ દેખાવું જોઈએ, તો એ સત્સંગનો લાભ છે. નહીં તો જેવા હતા એવા જ જ્યારે રહેવાના હોઈએ
તો એ સત્સંગનો કઈ અવસર અર્થ નહીં. પણ આ એક સુંદર મને વાત એ દેખાય છે કે આવા કલિકાલમાં, આવા કાલમાં કે જ્યાં લોકોને પ્રભુના દર્શન, પ્રભુનું સ્મરણ કરવાની ફુરસદ નથી, એટલી બીજી બધી માથાકૂટ પંચાયતોમાં લોકો લાગી ગયા હોય કે જ્યાં ક્યાંય ફુરસદ ન મળતી હોય, ત્યાં આપણે ઇનિશિયેટિવ લઈને, આપણા સાઈડથી ઇનિશિયેટિવ લઈને અને સ્પેશિયલી ભગવત સત્સંગમાં જ્યારે આપણે જોઈન થઈએ તો આ બહુ સુંદર વાત છે. એનું મતલબ શું છે? કૃપા પરિજ્ઞાનમ તું માર્ગરુચ્ય અનુમીયતે. એનું મતલબ કૃપા છે. કૃપા છે કે નહીં એ કેવી રીતે ખબર પડવાની? આમ કઈ લખેલું થોડી હશે આના પર છે આના પર નથી, એવું માથા પર લખેલું ના હોય. ખબર કેવી રીતે પડશે? કૃપા પરિજ્ઞાનમ તું માર્ગરુચ્ય અનુમીયતે. કૃપા છે કે નહીં, તમને રસ, તમને ઇન્ટરેસ્ટ છે કે નહીં. સત્સંગમાં જોડાયા ને બધા, એનો મતલબ ઇન્ટરેસ્ટ છે, રસ છે, પ્રભુમાં પ્રેમ છે, શ્રદ્ધા છે, એટલે કૃપા છે. તો કેવલ રસ હોવું, કેવલ આ કૃપા તો છે, એને કહેવાય છે બીજ. એને શું કહેવાય? બીજ. પ્રભુએ વરણ કરી આપ્યું છે કે જેમ એક્ઝામ્પલ આપું કે જેમ અહીંથી, જેમ અમે અહીંયા મુંબઈમાં છીએ તો તમારે યુકે બધા વૈષ્ણવ તમે છો, તો અમારે જેમ ત્યાં આવવું હોય તો અમારે એર ટિકિટ લેવી પડે, બરાબર? એર ટિકિટ લેવી પડે, એ વરણ છે. વરણ એટલે પ્રભુએ ડિસાઈડ કર્યું છે કે આ જે જીવ છે, ધીસ જીવ એ જે દેવી જીવ છે, એટલે પ્રભુ દ્વારા સિલેક્ટેડ જીવ છે, એ પ્રભુએ સિલેક્ટ કર્યું છે. એ સિલેક્શન કેવી રીતે ખબર પડી? આપણને ઇન્ટરેસ્ટથી ખબર પડી ને કે સિલેક્ટેડ છે એમ, એ રીતે. તો જ્યારે મારે ત્યાં આવવું હોય તો મેં ટિકિટ લીધી, ફ્લાઇટની એર ટિકિટ લીધી, તો એ જે છે ને એ બીજ છે. આ હું શું એક્સપ્લેન કરવાનું ટ્રાય કરું છું, તમે ધ્યાન આપજો. ભક્તિ, આ 2-3 ક્વેશ્ચન્સ લઈ લેશું અને પછી આપણે કેવી રીતે ભક્તોએ જીવી છે ભક્તિ, એના આપણે થોડું એના દર્શન કરશું. તો સૌથી પહેલા ભક્તિની દ્રઢતા કઈ રીતે થાય, એમાં ભક્તિ શું છે? તો ભજ પ્લસ 3 પ્રત્યય એટલે પ્રભુમાં પ્રેમ, પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની સેવા એ ભક્તિ છે, બરાબર? ખાલી પ્રેમ નહીં, કેવલ પ્રેમ નહીં, ઈશ્વરમાં પ્રેમ, એ ભક્તિ છે. એટલે મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક જે પ્રેમ હોય કે બાય નોઈંગ ધ ગ્રેટનેસ ઓફ પ્રભુ, by knowing the greatest, knowing the importance and knowing the mahatmya of પ્રભુ, એ ભક્તિ છે. ખાલી પ્રેમ નહીં. પ્રેમ તો આપણને લોકમાં પણ હોય છે, બધા આપણે જે બધા રિલેટિવ્સ હોય કે આપણા ઘરવાળા હોય બધા, એનાથી પણ પ્રેમ હોય છે. એ પ્રેમની, લૌકિક પ્રેમની વાત નથી થઈ રહી. બાય નોઈંગ ધ મહાત્મ્ય, બાય નોઈંગ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રભુ જે પ્રેમ થાય એને ભક્તિ કહેવાય છે. તો વોટ ઇઝ ભક્તિ? તો કે પ્રેમ જે હોય, મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક પ્રેમ, એ ભક્તિ. આ સૂક્ષ્મમાં આપણે સમજ્યું. હવે જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હતું, હવે આપણે વોટ જે હતું એ આપણે થોડુંક ડીલ કર્યું. હવે જે ક્વેશ્ચન છે વાય, એ ભક્તિની દ્રઢતા કેમ કરવી જોઈએ, એ પ્રશ્ન છે. સર્વપ્રથમ તો આપણે જોઈએ કે ભક્તિની દ્રઢતા કેમ. પહેલા આપણે જોયું કે વરણ જે છે એ પ્રભુએ આપણું કર્યું કેમ કે આપણને રુચિ છે માર્ગમાં, આપણને શ્રદ્ધા છે, પ્રેમ છે પ્રભુમાં, તો આપણું બીજ છે, બીજ ભાવ છે, એટલે આપણા પાસે ટિકિટ છે. અહીંથી મારે જર્ની કરવી છે યુકે સુધીની, મુંબઈથી યુકેની જ્યારે જર્ની કરવી છે તો મારા પાસે ટિકિટ છે. પણ એ બીજ ભાવ જે ટિકિટ છે, તો એ ટિકિટ લઈને મારે ફ્લાઇટમાં બેસવું તો પડશે ને. ખાલી ટિકિટ લઈને રહી જાઉં એમ તો નહીં ચાલે ને. ડૉક્ટરે મને કંઈક તકલીફ છે તો મને દવા લખીને આપી હોય, મને ડૉક્ટરે કંઈક દવા લખીને આપી હોય અને દવાની મારી પાસે ચિઠ્ઠી છે કે મારે આ દવા ખાવાની છે, પણ હું એ દવા ખાવું જ નહીં તો હું કેવી રીતે સાજો થઈશ, બરાબર? તો ડૉક્ટરે દવા આપી હોય તો એવી રીતે બ્રહ્મ સંબંધ આપણે લઈ લઈએ, એકવાર બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લઈએ આપણે, પણ આફ્ટર દેટ જે આપણે કરવાનું હોય એ આપણે ન કરીએ. કે શરણાગતિની દીક્ષા લઈ લઈએ આપણે, પણ એ જે બીજ છે, બીજ ભાવ છે, એ વધશે કેવી રીતે? તો એ વધશે નહીં ને, વેસ્ટ થઈ જશે. એ ટિકિટ જે આપણને મળી છે, અહીંથી ટ્રાવેલ કરવાની એલિજિબિલિટી છે ને, એ ટ્રાવેલ કરવાની એલિજિબિલિટી છે, તો એ એલિજિબિલિટી જ આપણે વેસ્ટ કરી દીધી. તો એ એલિજિબિલિટી વેસ્ટ ન કરવી જોઈએ. એને આપણે શું કરવું જોઈએ કે જેમ બીજ છે, જેમ બીજને આપણે શું કરીએ, રોપીએ. બીજ રોપવું પડશે, રોપીએ, પછી એમાં પાણી નાખીએ, ખાદ કરીએ, પછી એમાંથી ધીમે ધીમે કરીને અંકુર ફૂટે, બરાબર? તો અંકુર ફૂટે એમાં, તો એમાંથી પછી ફળ.
हाँ आशीर्वाद, हाँ અચ્છા તો કમ્પ્લીટ હિન્દીમાં કરી દઉં કે ગુજરાતી રહેવા દઉં? अच्छा ठीक, तो हिंदी में कर दो, एम कहीं वांधो नहीं। तो जो बीज है, तो वो बीज भाव जो है वो कैसे फिर वेस्ट हो जाएगा ना। जो हमने जो टिकट ली हुई है तो वो टिकट वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करके वो जो टिकट है उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे हमने ब्रह्म संबंध लिया है, तो ब्रह्म संबंध लिया है, उसके बाद वो बीज का जब रोपण हमने किया है, बीज जब हमने रोप दिया है, तो रोपने के बाद उसमें जल करना पड़ेगा। तो जल क्या है? सत्संग रूपी जल, खाद करनी पड़ेगी। और उसको हमको देखना पड़ेगा, उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि जो दूसरे जो एनिमल्स हैं, वो जो अंकुर फूटा है, जो घास हुआ है, उसको खा नहीं जाए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, तो दुस्संग से बचना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि वाय दृढ़ता, दिस इज वाई दृढ़ता इज इंपॉर्टेंट। भक्ति में दृढ़ता इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपका जो बीज है वो धीरे से डेवलप हो सके, नहीं तो वो डेवलप ही नहीं होगा। फिर जो अपॉर्चुनिटी है, हमें जो ये दिव्य मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जो इतने लाखों योनियों के बाद हमें ये जन्म मिला है, वो अपॉर्चुनिटी वेस्टेड। इफ वी डोंट टेक बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई। वो टिकट ली हमने, पर टिकट हमने फ्लाई नहीं किया, तो वो वेस्ट हो गया। तो ये हमने देखा। तो इसलिए आज जो हम देखेंगे, आज का जो हमारी विषय है, भक्तिनी दृढ़ता कई रीते थाय। तो अब उसके उपाय हमें देखने हैं कि कई रीते आपने दृढ़ता करी शकाय। तो श्री हरिराय जी की अपन वचनामृतों का आधार लेंगे, श्री हरिराय महाप्रभु के वचनामृतों का आधार लेंगे, और उनके ही वचनामृतों, शिक्षा पत्र और उनके जो स्वतंत्र ग्रंथ हैं वांग मुक्तावली में, उनके आधार से हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। बराबर? आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, એમાં કાંઈ સંકોચની વાત નથી। બરાબર? આપણે એના માટે જ ભેગા થયા છીએ કે આપણું કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો એ ક્લિયર થઈ શકે, ભાવ વધી શકે, એના માટે જ ભેગા થયા। તો મને તમે ક્યારે પણ અટકાવી શકો, એમાં કાંઈ ચિંતાની વાત નથી। તો ये अपन आज देखेंगे। तो अब भक्ति की दृढ़ता, हाउ છે હવે ક્વેશ્ચન। જો આપણે ડીલ કર્યું વોટ, આપણે ડીલ કર્યું વાય, નાउ हाउ, नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ हाउ। तो दृढ़ता कैसे करनी, बराबर? હવે એમાં જે ફર્સ્ટ છે, 4 વસ્તુ હું બતાવીશ દૃઢતા કેવી રીતે થાય એના માટે। तो उसमें से जो फर्स्ट चीज है वह है गुणगान। फर्स्ट चीज है गुणगान। गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते। गुणगान से जो आनंद प्राप्त होता है, यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यत, कि जैसा बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जो आनंद प्राप्त नहीं होता है उनकी ज्ञान की समाधि में, ऐसा आनंद जो है वो सुखदेव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो भक्ति से, जो गुणगान करने से आनंद प्राप्त होता है। तो अब देखें गुणगान से क्या होता है। सर्वप्रथम जब हम देखें, अपन जब सर्वप्रथम ये देखें कि गुणगान से क्या होता है, आ स्टेप्स છે। ધીમે ધીમે ભક્તિ દ્રઢ કેવી રીતે થાય, તો જ્યાર સુધી આપણે 4th સ્ટેપ સુધી પહોંચશું ને, તો ધેટ ટાઈમ વી વિલ નો કે હાઉ ભક્તિ દ્રઢ કેવી રીતે થાય। બરાબર? તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ હું બતાવી રહ્યો છું કે જે બેઝિક્સમાં, જ્યારે આપણું બીજ ભાવ, બીજ અવસ્થામાં જ્યારે આપણી ભક્તિ હોય, ત્યારે આપણે કેવી રીતે દ્રઢ કરવું જોઈએ। તો બીજ, એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ગુણગાન। બરાબર? ગુણગાનથી શું થાય, क्या होता है गुणगान से, कि प्रभु ना स्वरूप नु ज्ञान, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान गुणगान से होता है। तो क्या ज्ञान होता है, कि प्रभु के महात्म्य के बारे में ज्ञान होता है। कि गुणगान है ना, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब प्रभु के 6 गुण हैं। तो प्रभु के बारे में गुणगान का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में कुछ कहना, किसी के गुणों का वखान करना। तो ये प्रभु के ये जो 6 गुण हैं, उनको हम गाएं, उनको हम कहें, वह गुणगान होता है। तो प्रभु के गुणगान से क्या होता है, 3 चीजें होंगी। एक, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होगा, दूसरा जीव के स्वरूप का ज्ञान होगा, 2, और तीसरा क्या होगा, कि दोनों के संबंध का ज्ञान होगा। 3 वस्तु अपने गुणगान करशु ने एनाथी मळशे। पहली,
પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, બીજું આપણા સ્વરૂપનું જ્ઞાન, જીવના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, અને ત્રીજું પ્રભુ અને જીવમાં શું संबंध છે એનું જ્ઞાन। तो 3 चीज अपन को इसमें से मिलेगी। और प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हम करेंगे तो क्या पता चलेगा? प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, प्रभु जो है वो सर्वेश्वर हैं, प्रभु जो है वो सर्वेश्वर हैं, सर्वात्मा हैं, ये ज्ञान होगा। प्रभु जो है वो सर्व सृष्टि के कर्ता हैं, जगदीश हैं, जगन्नाथ हैं, और प्रभु जो हैं वो हमारे अंशी हैं, ये हमको ज्ञान होगा, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होगा। दूसरा सेकंड हमको क्या ज्ञान होगा? हमारे स्वरूप का ज्ञान होगा कि जीव है वो कौन है? दास है, प्रभु का दास है। वही तो हम कहते हैं ना कि दास हूं मैं, अहम दासो हम, वही हम कहते हैं कि अहम दासो हम, तो ये कहते हैं। दूसरा क्या है? प्रभु स्वामी है, जीव सेवक है। प्रभु अंशी है, जीव क्या है? अंश है, छोटा सा पार्ट है प्रभु का। तो अब अपन ऐसे देखें अगर, तो आपको मैं बताऊं, जीव अगर छोटा सा पार्ट है प्रभु का, तो आप देखो कि अंश, ऐसे एक न्याय है संस्कृत में, यह यदंश स तम भजेत, जो जिसका अंश है उसका वो भजन करता है, जो जिसका अंश है वो उसका भजन करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अपना जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम बीच में सन है, सूर्य है, फिर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वो ये जो सन है उसके चारों तरफ घूमते हैं, बराबर। ये जो सन है उसके चारों तरफ वो घूमते हैं, बराबर। अब घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? क्योंकि ये जो सब प्लैनेट्स हैं वो सन में से ही तो आए हैं। ऑल द प्लैनेट्स विच हैव ओरिजिनेटेड आर ओरिजिनली फ्रॉम द सन, वो सन में से ही अलग हुए हैं। तो यह यदंश सतम भजे, तो जो जिसका अंश है वो उसकी परिक्रमा करता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, वो उसके आसपास ही घूमता है। ऐसे ही मून देखिए, मून, अर्थ का जो मून है, अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसके चारों तरफ मून घूमता है, बराबर। क्यों घूमता है? क्योंकि वो जो मून है वो भी अर्थ में से ही तो अलग हुआ है, इसीलिए यह यदंश सतम भजे, जो जिसका अंश है उसकी भजन करता है। ऐसे ही हमें जीव के स्वरूप का ज्ञान होगा, जीव का स्वरूप गुणगान करने से जीव के स्वरूप का ज्ञान होगा। और थर्ड जो है वह संबंध का ज्ञान होगा। अब इंडिविजुअली तो हमने जान लिया, अब हमें संबंध का ज्ञान होगा, तो ये हमने समझा गुणगान। नाउ अब थोड़े से एग्जाम्पल्स जो है वो हम अपने वार्ता में से देखते हैं, वार्ता में से दर्शन करेंगे, क्योंकि ये जो वार्ताएं हैं वो हमारे भगवदियों ने जो जिया है उसको ही हम देखेंगे, बस उससे ही हम समझ जाएंगे, नहीं ऐसे ही करना है। तो सबसे पहली जो वार्ता मैं आपको बताऊं वो जो है अली खान की बेटी। आप वार्ता साहित्य का जो आप दर्शन करते होंगे तो अली खान पठान, उनकी बेटी पीरजादी, उनकी वार्ता का दर्शन। गुणगान में तत्पर कैसे होते हैं कि જ્યારે પણ સત્સંગનો અવસર આવે ત્યારે દોડતા દોડતા જે પણ કાંઈ હોય ને એ બધું પછી, પહેલા સત્સંગનો અવસર છે, પહેલા અમને સદપુરુષોનું સંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તો પહેલા એ કરશું, ऐसे। तो अली खान पठान की जो बेटी है पीरजादी, उनकी अपन थोड़ी सी वार्ता देखें तो उसमें यही है कि एक दिन सत्संग हो रहा था और आचार्य चरण के सामने सब वैष्णव बैठ गए और ये पीरजादी अभी तक आए नहीं थे। तो श्री गुसाई जी ने कहा कि अभी अली खान और उनकी बेटी आए नहीं है, वो लोग आएंगे उसके बाद सत्संग स्टार्ट होगा, एम कीधुं। એટલે બધાને વિચાર થયું, બધા સામે વૈષ્ણવો બેઠા હતા, એ લોકોને વિચાર થયું કે આ લોકો મુસલમાન મ્લેચ્છ છે, આ લોકો બધા, એના માટે એને આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ શ્રી ગુસાઈજી કેમ આપે છે, એવું શું હશે જાણે, એમ વિચાર થયો। તો એટલે બધાને એવો વિચાર થયો, એટલામાં થોડીક વારમાં છે ને वो आए, वो दोनों जन आए, पीरजादी और अली खान, उनके बाप बेटी दोनों जन आए। तो वो आके बैठे, वो जैसे आके बैठे फिर श्री गुसाई जी ने सत्संग करना शुरू करने वाले थे। फिर श्री गुसाई जी ने पूछा कि लास्ट टाइम सत्संग में हमने जो कराया था, क्या कराया था, कोई बताएगा जरा। तो सब लोग आजू बाजू देखने लगे, हवे शू करवू, पूछी लीधुं, जे क्वेश्चन पूछी लीधो, हवे शू करवू। तो बधा डरी गया, आजू बाजू बधा जोवा लागे कि मने न पूछी ले, मने न पूछी ले एम। जैसे स्कूल में ऑनलाइन आजकल चलता है ना सेशंस, तो सब लोग ऑनलाइन दिखते हैं सामने, तो सबके फेसेस तो दिख रहे होते हैं, जैसे मुझे भी आप सबके फेसेस दिख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो।
तो फेसेस दिखते होते हैं, तो अचानक कोई कुछ गड़बड़ कर रहा होता है या किसी का ध्यान नहीं होता है, तुरंत नाम लेके पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही वहां पे श्री गुसाई जी पूछने वाले थे, प्रश्न पूछवाना था, એટલામાં પીરજાદીએ કીધું કે જયરાજ આપ આજ્ઞા કરો। કોઈએ કાંઈ ન બોલ્યા, કોઈ કાંઈ ન બોલ્યું। પછી પીરજાદીએ કહ્યું જયરાજ આપ આજ્ઞા કરો તો હું કંઈક કહું। તો શું કહું? તો શ્રી ગુસાઈજીને પૂછ્યું, તો ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, બોલો શું બોલો છો? તો પીરજાદીએ કીધું કે જયરાજ આપે આજ્ઞા કરી કે સત્સંગમાં શું આવ્યું કે તો એ ફર્સ્ટ ટાઈમથી જ્યારે સત્સંગ થયું હતું, જ્યારે હું પહેલી વાર સાંભળવા આવી હતી ત્યારથી કહું કે ખાલી લાસ્ટ ટાઈમનું કહું? તો શ્રી ગુસાઈ કે જો આવી ગુણગાનમાં તત્પરતા હોવી જોઈએ, આવી गुणगान में तत्परता कि सब कुछ हृदयारूढ़ है। खाली कान से सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं ना, तो हृदयारूढ़ नहीं होता है। पर जब अपन उसको श्रद्धा से, प्रेम से, श्रवण आदर के साथ जब उसको सुनते हैं ना, तो वो हृदयारूढ़ हो जाता है। तो ये गुणगान पर हैं ये भक्त, इनसे हमें ये सीखना जानना चाहिए। जैसे अपन देखें दिनकर दास सेठ की वार्ता आती है, आपको ध्यान हो तो 84 वैष्णव में दिनकर दास सेठ की वार्ता आती है। तो वह वार्ता में आप देखो, તમે अगर पेन पेपर हो तो एમાં લખી પણ શકો છો, तो आगे आप कभी बैठो तो आपको याद रहे कि ये वार्ता इसमें आ सकती है। तो वार्ताओं को भी ऐसे ग्रंथ पढ़े ना, उसके साथ जोड़ के देखा करिए आप, तो आनंद आएगा कि ये जो आज प्रसंग आया वार्ता में, वह कौन से ग्रंथ में कहाँ बात कही है, तो आपको वो तुरंत बात लग जाएगी, मॉरल आपको हाथ में आ जाएगा कि ऐसे नहीं जीना चाहिए। तो जैसे दिनकर दास सेठ का प्रसंग देखिए, आचार्य चरण रोज सुबोधनी जी की कथा कहते हैं, महाप्रभु जी जब भी पधारते, सुबोधनी जी की कथा इत्यादि होती, तो दिनकर दास सेठ रोज नित्य जाते। अब एक दिन क्या हुआ, थोड़े से लेट हो गए दिनकर दास, थोड़े से लेट हो गए, और आप है ना रसोई बना रहे थे, यमुना जी के किनारे पे काठा पर बेसीने रसोई बनावी था। तो हवे रसोई જ્યારે બનાવતા હતા तो गैस चालू है ने रोटी वणता था, रोटलीओ वणता था। तो अब रोटी जब बना रहे हैं तो अब वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इतने में है ना श्री महाप्रभु जी के वहाँ से उनके जो जलघड़िया होंगे वो यमुना जी में जल भरने आए। और जल भरने आए तो दिनकर दास ने पूछा, उनसे भगवत स्मरण किया और पूछा कि अरे क्या समय है श्री आचार्य चरण, आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या समय है? तो बस उन्होंने कहा बस अब सत्संग स्टार्ट ही होने वाला है, पुस्तक जी हाथ में, पोथी जी सुबोधनी जी के हाथ में लिए ही है श्री महाप्रभु जी ने, ऐसा कहा। तो दिनकर दास से रहा नहीं गया, क्योंकि सत्संग में तत्परता इतनी होती है। जिस चीज का, देखिए मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, प्रभु स्वरूप का ज्ञान, जिस चीज का आपको लाइफ में इंपॉर्टेंस होगा ना, उसके लिए टाइम अपने आप निकलेगा। आप खाली अपना लाइफ को आप एनालाइज कीजिएगा, जिस चीज को आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वेटेज देके रखा होगा, उसके लिए आपके पास टाइम हमेशा अवेलेबल होगा। और जिस चीज का वेटेज लाइफ में सबसे कम होगा, उस चीज की आप अवेलेबिलिटी आपके पास होगी नहीं। टाइम नहोતું ને એટલે ન આવ્યા, टाइम न મળ્યું, કેમ બીજી બધી વસ્તુ કરવાનું टाइम મળ્યું હતું, ખાલી આમાં જ તમે રહી ગયા એવું કેમ? કેમ કે તમે હજી સુધી એને એટલી વેટેજ, એટલો ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપ્યો, એ દેખાય છે। तो ये इसका अर्थ होता है। तो दिनकर दास ने क्या किया कि वो कच्ची जो उन्होंने रोटी जस्ट वणी हती एमणे, तो काची जे रोटली हती, लोट हतो लोट, ए लोट खाईने जल पीने दौड़्या। ए वस्तु जलगड़ियाए जोई कि अरे ये तो ऐसे ही भाग गए। दिनकर दास तो इतना सत्संग में रुचि, तब वो वहां सत्संग में जाकर बैठे, सत्संग सुना। सत्संग पूर्ण होने के बाद जलगड़िया ने कहा कि ये दिनकर दास तो आज कच्ची रोटी खा के आए हैं, बोलो। तो श्री वल्लभ ने कहा कि अरे दिनकर दास ऐसा किया? तो क्या जयराज ये रोटी तो रोज खानी है, प्रभु रोटी तो रोज खानी है, पर आपके मुखारविंद से जो रस वर्षा होगी ना, जो सुबोधनी जी की कथा होगी ना, जो भक्तों का चरित्र होगा ना, वो तो जीवन में हमने कभी नहीं सुना है। ऐसा अद्भुत वचनामृत हम नहीं सुन पाएंगे प्रभु, तो आपकी कृपा से ये प्राप्त होगा, वो तो क्या तुच्छ चीज है। तो देखिए गुणगान में तत्परता कितनी है, अपन को ये देखना है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ना, अपना भक्तिनी दृढ़ता कई रीते थाय, तो एमां गुणगान जे छे ने सौथी इम्पोर्टન્ટ छे। एनाथी महात्म्य वधशे, एनाथी तमारुं जे इम्पोर्टन्स छे, तमारुं जे एना प्रति ओरिएंटेशन जे छे ने, भक्ति प्रति, सत्संग प्रति, प्रभु प्रति, वैष्णव प्रति जे ओरिएंटेशन एक होय ने, एक दृष्टि होय ने, ए दृष्टि बदलाई जशे। गुणगान ए काम करे छे। तो गुणगान एटलुं सुंदर छे। आपणे आ जोयुं, एवी रीते बे वार्ता आपणे जोई। एक त्रीजी सरस वार्ता हूँ तमने बताऊँ कि गुणगान थी शू थाय।
ગુણગાનથી શું થાય કે આનંદદાસ અને વિશ્વંભરદાસની વાર્તા આવે છે 84 વૈષ્ણવમાં. વૈષ્ણવ ધ્યાન આપજો, આનંદદાસ અને વિશ્વંભરદાસની વાર્તા છે 84 वैष्णव. બંને ભાई હોય છે, आनंददास અને विश्वंभरदास. और दोनों का ऐसा नियम कि नित्य सत्संग करें, नित्य सत्संग करें, जब भी समय मिले सेवा करें, सेवा के अवसर में सत्संग करें, ऐसा ही उनका नियम. तो अब एक दिन क्या हुआ, आनंददास कथा पढ़ते, रोज भागवत जी पढ़ते, भक्तों का चरित्र पढ़ते, तो ऐसी कथाएं पढ़ते आनंददास, और विश्वंभरदास सुनते. तो अब सुनते दोनों जन मिलके, अब क्या होता कि बहुत देर जब कथा चलती ने तो बॉडीનું એક નોર્મલ એવું હોય કે બહુ વાર સુધી આપણે બેઠા હોઈએ ને તો ઝપકી આવી જાય, ઝોકો આવી જાય એકાદ, બરાબર. બહુ વાર સુધી એમને બેઠા હોઈએ ને તો એકાદ ઝોકો આવી જાય. તો હવે શું થાય, કેમ એવું થાય હું તમને કહું. હવે હું જેમ બોલતો હોઉં ને તો મારી આંખ ચાલે છે, મારા કાન ચાલે છે, મારું મોઢું ચાલે છે, માઇન્ડ સતત વર્કિંગ છે, તો મને ઊંઘ નહીં આવે. તમે સાંભળો છો ને તો તમારું ખાલી એક જ વસ્તુ ચાલી રહી છે, કઈ? કાન. એક જ ઇન્દ્રિય ચાલે છે કે બે? તમે જોઈ રહ્યા છો તો બે ઇન્દ્રિય ચાલે છે. તો એનાથી શું થશે, નિષ્ક્રિય છે ને આખું શરીર, તો એનાથી ઝોકો આવી જશે. કે જેવી રીતે ડ્રાઈવર છે, ગાડી ચલાવતો હોય ને, એને ઊંઘ નહીં આવે, કેમ કે એના એક્સિલેટર હોય, બ્રેક હોય, ગિયર હોય, સ્ટેરિંગ હોય, એને ઊંઘ નહીં આવે, બરાબર. પણ જે એના બાજુમાં પેસેન્જર જે બેઠો હોય એને ઝોકો આવી જાય. કેમ? હી ઇઝ નોટ એક્ટિવ, હી ઇઝ નોટ એક્ટિવ, દેટ્સ વાય એને ઝોકો આવી જાય. તો એટલે અહીંયા પણ એવું જ થયું. આનંદદાસ અને વિશ્વંભરદાસ જે છે, બંને ભાઈ જે સાંભળતા હતા, તો વિશ્વંભરદાસ જે છે એમને ઝોકું આવી ગયું. સાંભળતા હતા બહુ ઉત્સાહથી, આનંદથી, પણ અચાનક એમને ઝોકું આવી ગયું. પર હવે શું થાય, આનંદદાસ એટલા આનંદથી વાંચતા હતા ને, જે સત્સંગમાં જે ચરિત્રો વાંચતા હતા, આનંદદાસ બહુ આનંદથી વાંચતા હતા. તો એ આનંદથી એટલા ગુણગાનમાં તત્પર થઈ ગયા કે સાક્ષાત જે શ્રોતા છે ને એ શ્રીજી બાવા બની ગયા. સાક્ષાત જે એમની કથા છે એમના શ્રોતા શ્રીજી બાવા બની ગયા. તો વિશ્વંભરદાસના ગોદીમાં બિરાજીને આનંદદાસથી સાંભળવા લાગ્યા. હવે વિશ્વંભરદાસ તો સૂઈ ગયા, ઝોકું આવી ગયું, તો હુંકારી શ્રીજી બાવા આપવા લાગ્યા. હુંકારી, નહીં તો હુંકારી ન આપે તો આનંદદાસ ઉપર જુએ તો જોએ સૂઈ ગયા છે, તો એ વાંચવાનું બંધ કરી દે ને. તો શ્રીનાથજીને એવું નહોતું જોઈતું. શ્રીનાથજીને કીધું કે આ વાર્તા ચાલુ રાખે, કેમ કે પ્રભુ આજ્ઞા કરે છે, મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. મારા ભક્તો મારું જ્યાં ગુણગાન કરે છે ને, પ્રભુ કહે છે હું તો ત્યાં જ મળું છું. એ સત્સંગમાં પ્રભુ બિરાજે છે. તો અહીંયા પણ એ જ થયું. તો શ્રીનાથજી હુંકારી આંકવા લાગ્યા. થોડીક વાર પછી વિશ્વંભરદાસની ઊંઘ ઉડી ગઈ. अब वो जाग गए. विश्वंभरदास जब जाग गए तो देखे, अरे मैंने तो बहुत मिस कर दिया, मैंने तो 15 मिनट पहले यहाँ पे प्रसंग पूरा हुआ था, वहां पे सुना था मैंने तो, और अब तो यहाँ तक आ गया है. तो उन्होंने आनंददास को रोका और कहा कि अरे अरे मैं तो सो गया, मैंने तो यहाँ तक ही सुना था. तब जाके फिर देखा तो अरे तो हुंकारी कौन दे रहा था. तब पता चला गोवर्धन धर विराज रहे थे, श्रीजी वहां विराज के हुंकारी दे रहे थे. तो प्रभु को सत्संग इतना प्रिय है. तो गुणगान परे जो भक्त होते हैं ना, उनको स्पेशली ठाकुर जी उनको बहुत प्रिय होते हैं, और प्रभु को भी वो भक्त बहुत प्रिय होते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप जो है ना अपना, वो गुणगान पर है. गुणगान में प्रीति होनी आवश्यक है. ये बात भक्ति दृढ़ कैसे हो, उसमें पहली फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, शिक्षा पत्र में भी बता रहे हैं. जैसे आप 11वां शिक्षा पत्र देखेंगे, 11वां शिक्षा पत्र, उसमें आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे, और वांग मुक्तावली में भी अमुक ग्रंथ हैं, उसमें भी ये देखने मिलेगा. तो फर्स्ट स्टेप जो है वो गुणगान है. सेकेंड स्टेप अब अपन देखेंगे. सेकेंड स्टेप क्या है, तो कि गुणगान जब महात्म्य आप जान लेंगे ना, जब आप प्रभु का महात्म्य जान लेंगे, अपना खुद का स्वरूप जान लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि હું જો કોલર ઉપર કરીને આખો દિવસ ફરું છું એવું કાંઈ નથી. જે બધું આપ્યું છે પ્રભુએ આપ્યું છે, वो जान जाओगे कि मैं तो प्रभु की इतनी बड़ी सृष्टि में एक उनका छोटा सा अंश हूँ, तो प्रभु कितने बड़े हैं और मैं कितना छोटा हूँ. तो अहंकार चला जाएगा. फिर क्या हो जाएगा, निस्साधनता का भाव आने लगेगा. निस्साधनता का भाव आ जाएगा कि मैं, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता है, मैं क्या प्रभु की सेवा कर लूंगा. जो जगदीश जगन्नाथ हैं, लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, कि जिनके साक्षात लक्ष्मी जी पत्नी है, उनको हम क्या दे सकते हैं. किम भूषणम ते कौस्तुभ भूषणाय, जिनको खुद कौस्तुभ मणि जिन्होंने धारण कर रखी है, उनको हम क्या आभरण धरा सकते हैं. वागीश जो हैं वो तो ठाकुर जी हैं, उनकी हम क्या स्तुति कर सकते हैं. गरुड़ासन आया, किम आसनम ते गरुड़ासन आया,
जिनका गरुड़ जैसा इतना उत्तम आसन है, उनको हम क्या सिंहासन दे सकते हैं? तो हम नमन के अतिरिक्त जीव में और कोई सामर्थ्य नहीं है कि कुछ कर सकता है। जीव नमन एवं कर्तुम शक्यम, जीव नमन ही कर सकता है प्रभु को। तो इसीलिए दैन्यता आ जाएगी। जब आप गुणगान करेंगे ना प्रभु का, तो दैन्यता आएगी। गुणगान करने से सेकेंड स्टेप इज दैन्यता। तो सेकेंड स्टेप दैन्यता आएगा, निस्साधनता की भावना आएगी। जब तक यशोदा जी को यह था कि मैं ठाकुर जी मस्ती कर रहे हैं तो उनको मैं बांध लूंगी, यशोदा जी को जब तक यूं था कि ठाकुर जी मस्ती कर रहे हैं तो उखल से ठाकुर जी को मैं बांध लूंगी, तब तक प्रभु नहीं बंधे। पहले इतनी रस्सी लाए, फिर इतनी रस्सी लाए, फिर इतनी रस्सी लाए, फिर सब रस्सी को जॉइंट कर दिया ठाकुर जी, यशोदा जी ने ठाकुर जी को बांधने के लिए। फिर घर में जितनी रस्सी थी सबसे प्रभु को बांधने की प्रयत्न करी, सब रस्सी को जॉइंट कर दिया, तो भी ठाकुर जी बनते नहीं। 2 उंगली छोटा रह जाता, हमेशा 2 उंगली छोटी रह जाती। अरे ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि 2 उंगली जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? शरण और समर्पण। 2 उंगली जो है वो क्या है? शरण, जो अपनी पहली कंठी है, अपनी पहली कंठी शरणागति की जो दीक्षा है वो शरण है, और समर्पण जो दूसरी ब्रह्म संबंध की दीक्षा है वो समर्पण है। ये जो 2 कंठी है ना, उससे प्रभु बंध जाते हैं। क्योंकि वल्लभ की कहानी से आपने जब ये दोनों कंठी धारण करी है तो प्रभु बांधने की रस्सी आपके पास है, बस उससे प्रभु को बांधने की देर है। आप बांधते नहीं हो। आप जारे रस्सी मौजूद है अपना पास है तो આપણે बांधता केम નથી? प्रभु साथे बंधाई जવું જોઈએ આપણે तो ये अपन ने देखा निस्साधनता, दैन्य जो है। जैसी दीनता आई यशोदा जी में कि हे प्रभु बंध ही नहीं रहे हो, दुखी हुए, जैसे दुखी हुए दीनता आई, निस्साधनता आई, मेरे से तो नहीं हो पाएगा कान्हा को बांधना। तुरंत प्रभु के ले मैया बांध ले मोकू, तुरंत यशोदा जी क्या के ले मैया बांध ले, तो प्रभु बंध गए। तो दीनता से प्रभु बंध जाते हैं। दैन्यमेव त्वत्तोष साधनम, दीनता ही है वो प्रभु प्रसन्नता का एकमात्र साधन है। आचार्य चरणैरुक्तम, प्रभु आचार्य चरण ने यही बताया है कि दैन्य जो है वो ही दीनता का एकमात्र साधन है। तो सेकंड स्टेप क्या है? गुणगान करेंगे, गुणगान करने से स्वरूप का ज्ञान होगा, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, और फिर क्या होगा? दोनों के संबंध का ज्ञान होगा, महात्म्य पता चलेगा। उससे क्या पता चलेगा? उससे दीनता आएगी, दैन्य होगा। तो दैन्य कैसा होना चाहिए, ये एक खाली एग्जाम्पल देखिए आप, तो आपको अपन को समझ में आ जाए कि ओहो ऐसी दीनता, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला उदाहरण दैन्य में देखें तुलसा की वार्ता। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दीनता होए ने तो तुलसानी वार्ता है। कभी भी उठा के आप देख लो, दर्शन कर लो। श्री गोसाई जी तुलसा के पास आप पधारे, तुलसा सन्मुख हुई श्री गोसाई जी के, तो श्री गोसाई जी आपने पूछा कि प्रभु सानुभावता जतावे हैं। श्री गोसाई जी ने क्या प्रश्न पूछा कि प्रभु सानुभावता जतावे हैं, सेवा तो आनंद सु करो हो ने, ये प्रश्न श्री गोसाई जी ने पूछा तुलसा से। तो तुलसा ने कहा कि जयराज, तुलसा से प्रभु बातें करते थे, हम बातें करते थे, उनसे जो चाहिए सो मांग ही लेते। तुलसा से तो जो चाहिए सो मांग लेते और खूब प्रेम सु सानुभावता जताते थे तुलसा से। पर तुलसा का जवाब सुनने जैसा है वैष्णवजनों। तो उन्होंने क्या कहा? तुलसा ने हाथ जोड़ के कहा, जयराज हमारी कहाँ सामर्थ्य जो हमारे से प्रभु बात करें, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं जो हमसे प्रभु बात करें। हम तो केवल पेट भरी खैयत हैं, नींद भरी सोयत हैं, और श्री महाप्रभु जी के ग्रंथन को नित्य पाठ करत हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है जयराज, हमारे कोई ऐसी लायकात है? यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी में जॉब लेने जाना हो तो कितना बड़ा रेज्यूमे बनाना है, કેટલું एक्सपीरियंस है, तुमने કેટલા વર્ષ क्या काम કર્યું છે, तुरंत रेज्यूमे में आ जाता है कि नहीं? रेज्यूमे में लिखना पड़ता है हमको कि हमने ये कंपनी में इतना एक्सपीरियंस है, तब वो कंपनी वाले देखते हैं कि अच्छा इतना एक्सपीरियंस है इनको हमारी कंपनी में, तो फिर हम काम पे रख सकते हैं। बराबर, उनकी सेवा में, वो छोटी लौकिक कंपनी की सेवा में जब हमें जाना है तो हमें इतने बड़े रेज्यूमे की जरूरत पड़ती है। पर जब जगदीश और जगन्नाथ ऐसे प्रभु की किमासनम ते गरुणासनाय कौस्तुभ भूषणाय किम लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, ऐसे जो प्रभु हैं उनकी जब सेवा की बात आए तो हमारी क्या लायकात है?
ऐसे तुलसा ने कहा कि हे प्रभु हमारी कोई लायकात नहीं, हम तो केवल पेट भरी खैयत हैं और नींद भरी सोयत हैं। पेट भर के हम खाते हैं और नींद भर के सोते, पर श्री महाप्रभु जी की कृपा है, उनके ग्रंथन को नित्य पाठ करत है ना, तो जो भी हमको आपकी कृपा से फल प्राप्त हो रहा है वो आपके कारण प्राप्त हो रहा है प्रभु। ये दीनता है, परफेक्ट दीनता का एग्जाम्पल हमने जब देखे तो ये दीनता का उदाहरण है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप देखा गुणगान, सेकंड स्टेप हमने देखा दैन्य देखा। तो प्रभु की प्रसन्नता का जो कारण है वो दैन्य है। अब जो हम स्टेप देखेंगे थर्ड स्टेप, धीरे धीरे स्टेप है। थर्ड स्टेप, जब दीनता होने लगेगी ना, जब खुद की निस्साधनता, जब हम्बलनेस आ जाएगी, जब हम्बलनेस जયારે આવી જશે તો પોતાની નિસ્સાધનતા જ્યારે પ્રાપ્ત થશે, નિસ્સાધનતાનું જ્યારે આપણે લાગશે કે હવે નિસ્સાધન છીએ અમે, ऐसा जब आपको लगेगा तब जाकर दुख भावन, ये थर्ड स्टेप है, तब जाके आपको दुख होगा, विप्रयोग होगा। पहले तो गुणगान, पहले तो सेवा प्रभु की अपन करें या गुणगान करें। देखो गुणगान दोनों में हो सकते हैं, प्रभु विराजते हैं, आप सेवा करते हो प्रभु की सन्मुख में, या आप हवेली में सेवा करते हो, या आप अपने गुरु घर जा सके सेवा करते हो, तो गुणगान सब जगह हो सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन इन गुणगान, गुणगान सब जगह हो सकते हैं। जैसे आप उदाहरण देखो कि अपन बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपन यहाँ भी गुणगान कर रहे हैं, अपन बैठे हैं हवेली में बैठे हैं। जैसे अपन अष्ट सखा की वार्ता देखते हैं, तो वो उन्होंने तो मंदिर में जाके ही गुणगान किए, श्रीनाथ जी के मंदिर में ही जाके सब गुणगान करते थे, तो ऐसे गुणगान कर सकते हो। या फिर सेवा के अनवसर में, जब सेवा नहीं चल रही हो तब गुणगान कर सकते हैं, तो गुणगान कभी भी कर सकते हैं। तो गुणगान, उसके बाद आता है दैन्य। दो स्टेप अपन ने देखे, दो छोटे स्टेप और हैं अपन देखें। पहले एक कीर्तन गा लेते हैं दीनता का, बराबर। तो एनाથી શું થાય કે એક જ આપણી ઇન્દ્રિયો ચાલતી હોય ને ખાલી કાન, તો પછી વિશ્વંભરદાસ જેવું થઈ જાય પછી વધારે। तो એના કરતાં એક કીર્તન ગાઈ લેવું અને दीनता समझी लेवी। तो दीनता के बारे में थोड़ा सा अपन एक कीर्तन देख लेते हैं। सब आपको भी गाना है, सब बैठ के सब आप गाइए। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा कोई कलाकार नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है गाना, पर फिर भी प्रभु के गुणगान है, उसमें शर्म नहीं करनी, मैं इतना जानता हूँ। गुणगान गाने आनंद से, बिंदास गाने। तो ये अपन एक गुणगान का एक पद लेते हैं। ये पद में दीनता का ही वर्णन है। श्री वल्लभ चाहे सोई करे, ये कीर्तन है। इसमें देखिए कि जो भी है सब श्री वल्लभ के ग्रंथन को नित्य पाठ करत हैं, तुलसा ने ये कहा। तो श्री वल्लभ की कृपा है, उससे ही हमें ये अनुभव हो रहा है, उसके अतिरिक्त हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हमको अनुभव हो। तो श्री वल्लभ चाहे सोई करे, जो उनके पद दृढ़ कर पकड़े, जो श्री महाप्रभु जी के चरण को दृढ़ कर पकड़े, वह महारस सिंधु भरे। वो लोग भक्ति रस, महारस जो भक्ति रस है वह उसका सिंधु भरे, उससे वह भक्ति रस का जो समुद्र है वह समुद्र में गोथे लगा लेते हैं। भक्ति रस के समुद्र में श्री वल्लभ की कृपा, जो उनके पद दृढ़ कर पकड़े, ये बात है। वेद पुराण सुघड़ता सुंदर वातन न सरे, जो ये वेद पुराण इत्यादि है ना, वो बातन न सरे, वो ऐसे ही नहीं समझ में आ जाता है, वो तो श्री वल्लभ की कृपा हो तब जाके समझ में आ जाता है। अपना अपने दिमाग से इसके अर्थ नहीं कर सकते हैं। तो श्री वल्लभ की दुर्बोधम सुबोधम स्यात्, श्री महाप्रभु जी की कृपा हो तो दुर्बोध वस्तु भी सुबोध हो जाती है। तो वेद पुराण सुंदर बातन न, श्री वल्लभ के पद रज भज के भवसागर ते तरे। श्री वल्लभ के पद रज नाथ के नाथ, अनाथ के बंधु, अवगुण चित न धरे। श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? नाथ के नाथ, और कैसे हैं? अनाथ के बंधु। निस्साधन जो जीव हैं उनके बंधु हैं, उनको भवसागर में से खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो अवगुण चित्त न धरे, जीवों के अवगुणों को चित्त नहीं धरते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं। पद्मनाभ को अपनो जानी के डूबत कर पकड़े। पद्मनाभ दास जी का ये पद है कि डूबत कर पकड़े, डूबता हुआ हाथ पकड़ के भवसागर से बाहर खींच लिया। तो इसका एक बार सुंदर गान करें सब वैष्णव मिलके, फिर उसके बाद अपन आगे दो जो स्टेप हैं वो 15-20 मिनट में देख लेंगे। तो वल्लभ चाहे, बिहाग में इसको लेंगे।
नारर नारर ना। वल्लभ चाहे सोई करे, वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे। जो उनके पद दृढ़ कर पकड़े, जो उनके पद दृढ़ कर पकड़े, महारस सिंधु भरे, महारस सिंधु भरे। वेद पुराण सुघड़ता सुंदर, वेद पुराण सुघड़ता सुंदर, वातन न सरे, वातन न सरे। श्री वल्लभ के पद रज भज के, श्री वल्लभ के पद रज भज के, भव सागर ते तरे, भव सागर ते तरे। नाथ के नाथ अनाथ के बंधु, नाथ के नाथ अनाथ के बंधु, अवगुण चेतन धरे, अवगुण चेतन धरे। पद्मनाभ को अपनो जान के, पद्मनाभ को अपनो जान के, डूबत कर पकड़े, श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे, श्री वल्लभ चाहे सोई करे। श्री वल्लभाधीश की जय। तो ये सुंदर कीर्तन वल्लभ चाहे सोई करे, इसमें दीनता का अपन को दर्शन हो जाता है कि उनकी ही कृपा से सब हो रहा है। तो कीर्तन आता है बल बल हो तनक तनक कर डारो, उसमें भी हमें हूँ गिनिए तिन में, आपके जो सेवक है ना, हमें हूँ गिनिए तिन में, भले बुरे सो तेरे, बल बल हो तनक तनक कर डारो। तो ये कीर्तन में यही दीनता का अपन भाव है। तीसरा जो स्टेप है वो दुख भावन का है। दुख भावन का स्टेप है, उसमें विप्रयोग की भावना, ये बड़ी मुख्य भावना है। विप्रयोग की जो भावना है ये बड़ी मुख्य है। इसमें सबसे पहले अपन एग्जाम्पल देखें तो यशोदा जी गोपीजन का, महाप्रभु जी निरोध लक्षण में आज्ञा करते हैं, यच्च दुखम यशोदायाम नंदादीनाम च गोकुले गोपिकानाम तु यद दुखम तद दुखम स्याद मम क्वचित। ऐसा दुख मुझे कभी होगा जैसा दुख यशोदा जी को जब ठाकुर जी वन में गाय चराने पधारते हैं, ठाकुर जी से इतने अटैच हो गए हैं कि उनसे प्रभु बिना रहा नहीं जाता। वो जो विरह होता है, जो गोपीजनों को जो विरह होता है, ऐसा दुख तद दुखम शायद मम क्वचित। श्री वल्लभ वो दुख मांग रहे हैं कि ऐसा दुख भी मुझे हो। तो ऐसा दुख प्रभु के सेवा के अवसर में अपन को होना चाहिए, दुख की भावना हमें करनी चाहिए। निरोध लक्षण में निरोध के दो उपाय बताए हैं, क्या? गुणगान और दुख भावन। ये निरोध प्रभु में अपने चित्त का अटक जाना, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, उसको निरोध कहा जाता है। मतलब लौकिक में अहंता ममता जो अपनी है, मारू हूँ अने मारू आज छे, ये जो अहंता ममता जो है वह छूट के अपनी निकल के प्रभु में जब वो लग जाती है, तब जाके वो निरुद्ध हो पाएगा व्यक्ति। तो प्रपंच विस्मृति वो भूल जाते हैं, इस संसार को भूल जाते हैं, और भगवद आसक्ति वह निरोध है। तो यहाँ पर ऐसा दुख तो वो गुणगान और दुख भावन से ही वह सिद्ध हो पाता है निरोध। उतारे था से तो યશોદાજીને જેવું થતું, જેવું દુઃખ જે છે યશોદાજીને, જેવું ગોપીજનોને થયું, એવું દુઃખ ક્યારે અમને થશે? કૃષ્ણ આરતી જે છે, કૃષ્ણ માટે જે આરતી છે એની અમને પણ ઈચ્છા છે, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। एक सुंदर બે વાર્તા હજી આપણે દર્શન કરીએ તો તરત દુઃખ ભાવન ખબર પડી જશે, મારે વધારે બોલવું જ નહીં પડે। તો ભક્તોનું ચરિત્ર આપણે જોઈ લઈએ ને તરત ખ્યાલ આવી જાય, જો આવું જ છે એટલે સમજી ગયા આપણે।
તો હવે એક વાર્તા આપણે જોઈએ ગોપાલદાસજીની. ગોપાલદાસજી કયા? શેઠ પુરુષોત્તમ દાસના દીકરા गोपालदासजी एमनी वार्ता अपने दर्शन करिए. ये वार्ता में शू है? वह वार्ता में यह आता है कि गोपालदास जी पुरुषोत्तम दास के पुत्र हैं. तो अब पुरुषोत्तम दास के पुत्र हैं तो परिवार ना सुंदर संस्कारों, पुरुषोत्तम दास के बेटा तो ऐसे ही होए. वार्ता में लख्यू है, श्री गुसाईन जी आज्ञा करी कि गोपालदास ने पुरुषोत्तम दास के बेटा तो ऐसे ही होए. एवा उत्तम भगवदीय सेठ पुरुषोत्तम दास तो उनके बेटा तो ऐसे ही होए. वे पण एटला ज भगवदीय ये गोपालदास जी. तो आजीवन सुंदर सुंदर कीर्तनों कर्या, प्रभु ने खूब सेवा करी, बहुत आनंद से सुंदर कीर्तन किए, प्रभु की सेवा की. धीरे धीरे बॉडी है ना, तो बॉडी है धीरे धीरे वेर एंड टेयर तो बॉडी में होता है. तो धीरे धीरे उनकी बॉडी जो है वो ओल्ड हुए, तो थोड़ा वेर एंड टेयर बॉडी में हुआ तो अशक्त होने लगे. गोपालदास जी जो हैं वो अशक्त होने लगे. तो अब उनसे जैसे पहले जैसे सेवा करते थे ऐसी अब उनसे इतनी सेवा नहीं हो पाती थी. तो उनको दुख होता था, दुख भावन जो यहाँ पर अपन ने देख रहे हैं, उनको दुख होता था कि मेरी सेवा नहीं हो पा रही है, पहले जैसी मेरी सेवा नहीं हो पा रही है. तो उनको प्रभु से वो रूम में रहते थे. सेठ पुरुषोत्तम दास है, बहुत द्रव्य पात्र थे, मोटो बंगलो हसे, मोटी हवेली हसे રહેવાની માટે. राजा महाराजाओं की भी मोटी मोटी हवेली होती थी पहला, तो ऐसे इनका भी बहुत बड़ा महल था. तो अब इनसे रहा नहीं, चला नहीं जाता, इनको बहुत विरह होता. तो ठाकुर जी का जो मंदिर था ना, उसके बाहर जो ओटला था, एक पतली सी धोती लेकर उस ओटले पे वो बिछा देते और उस पे वह सोते थे रात को, कि प्रभु से इतना विरह होता कि प्रभु से दूर नहीं जाया जाता. वह गोपालदास जी कहते कि नहीं, प्रभु से मदन मोहन जी की सेवा करते तो मदन मोहन जी से दूर नहीं जाया जाता उनसे. तो रात को भी सोते और रात को भी उठ जाते. शरीर में कुछ दुखा हुआ होता, दर्द होता, तो रात को भी नींद में से उठ जाते और कहते हे मदन मोहन जी, हे मदन मोहन जी. तो ऐसा दुख विरह देख के प्रभु भी तुरंत रिप्लाई करते, हाँ गोपालदास बोलो, क्या कह रहे हो गोपालदास. तुरंत प्रभु भी हुंकारी देते, तुरंत प्रभु रिप्लाई करते. तो गोपालदास कहता, अरे प्रभु आप कहाँ यहाँ जाग गए, आप तो पढ़ो. मुझे तो ऐसी आदत पड़ी है कि आपका विरह सहन नहीं होता, आपकी याद आती रहती है प्रभु, मुझे तो आदत पड़ी है ठाकुर जी, आप कहाँ, आप पढ़ो, आपको मैं श्रम देता हूँ. तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि जहाँ मेरे भक्त को दुख होता है, जहाँ मेरे भक्त को विरह होता है ना, मुझसे भी रहा नहीं जाता. मैं भी ये विरह जो होता है तो मेरे भक्त के पास आ जाता हूँ, मुझे भक्त का विरह सहन नहीं होता. तो वो जो दुख भावन है, निरोध लक्षण में कहते हैं क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत. ऐसे क्लेश युक्त जब भक्तों को देखते हैं, जब दुख होता है, प्रभु के मिलने की आरती जब भक्त को दृढ़ हो जाती है, तो क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत, तब प्रभु कृपायुक्त होके प्रकट हो जाते हैं. तदा सर्वम सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम वही. तो वो प्रभु बाहर प्रकट हो जाते हैं. वो दुख आरती ही प्रभु के प्रागट्य का कारण है. हर स्थान में अपन जब ये देखते हैं, वह दुख आरती जो है वो ही प्रभु प्रागट्य का कारण है. तो ठाकुर जी प्रकट हो गए. तो विरह में वो बड़े सुंदर सुंदर पद गाते. आपको बताऊं तो होली धमार में बहुत सुंदर पद आते हैं, वो गाते. कौन से वाले? ललना. आपने सुने होंगे सबने, होली वसंत धमार में सब गाते हैं ये पद. कौन सा पद है? श्याम छबीले मन हर्यो, श्री वृंदावन के चंद हो ललना. सुना होगा आपने, आप गाते भी होंगे. मैं तो आप सब कीर्तन भी सब सुंदर करते हैं, तो सब मैं मानता हूँ गाते भी होंगे. मोहन मेरे द्वार वे उझक चले जब भोर ललना. तो मोहन मेरे द्वार वे, तो ये कीर्तन है, तो इसको ऐसे गाना तो नहीं है, पर पहली जो होली सारंग है कैसे गाया जाता है वो थोड़ा अपन गान करें तो थोड़ा फील आ जाएगा. तो श्याम छबीले, श्याम छबीले मन हर्यो, श्री वृंदावन के चंद हो ललना. ये ऐसे बहुत बढ़िया कीर्तन है. मोहन मेरे द्वार वे उझक चले जब भोर ललना. तो ये ललना कीर्तन बहुत प्रिय है, तो ये उन्होंने गाया है. पर इसमें आप देखिए, ये जो कीर्तन है विरह का कीर्तन है. इनको दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के. आपके पास जब पुस्तक होगी तो सत्संग के बाद ये कीर्तन का दर्शन करिएगा आप, तो इसमें आपको विरह का भाव दिखेगा. इसमें लास्ट में जो छाप है ना गोपालदास जी की, वो देखिए, मदन मोहन के वार ने बल बल दास गोपाल. तो ये जो कीर्तन कहाँ गा रहे हैं? मदन मोहन के वार ने.
ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठकर मदन मोहन के वार ने बल बल दास गोपाल। तो वार ने बैठकर ये कीर्तन गा रहे हैं, तो ये कीर्तन है और वार ने बैठकर गा रहे हैं, दरवाजे पर बैठकर गा रहे हैं और प्रभु की बलबल ले रहे हैं, प्रभु की नजर उतार रहे हैं। ऐसे ये गोपाल दास हैं। और ललना तुम मेरे मन अति बसो सुंदर चतुर सुजान, तो ये सब इनके सुंदर कीर्तन है। तो प्रभु याद करते हैं ना प्रभु को दुख से, तो प्रभु पे तुरंत रिप्लाई देते हैं, क्योंकि भक्तों का दुख प्रभु से सहन नहीं होता है। ऐसे ही एक भोली बहू की भी वार्ता आती है, भोली बहू की वार्ता आती है 252 वैष्णवों में। आज केवल आपको कथा कहकर ही मुझे पूरा उपदेश दे देना है, जो आज भक्तों ने ही आपको उपदेश दिया है, ये आज मानना आप सब। तो भक्तों का चरित्र ही उपदेशात्मक है। तो भोली बहू की वार्ता आती है, सास बहू दोनों प्रेम से सेवा कर रहे होते हैं। थोड़ा फास्ट लूँगा, समय का थोड़ा अभाव है। तो दोनों खूब सास बहू प्रेम से सेवा कर रहे होते हैं। तो सासू रोज ठाकुर जी के श्रृंगार करते हैं, सब सेवा जो है प्रभु के स्पर्श करने वाली सब सेवा वो सासू माँ करते हैं, और बहू बिचारी बहुत भोली, उसको जो बताते जो करते वो करती बहू। હવે શું થયું, એક દિવસ શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા, શ્રી ગુસાઈજી એમના ગામમાં પધાર્યા, તો સાસુમાને એમ ઈચ્છા થઈ કે ગુરુના ત્યાં ગુરુના સન્મુખ થઈએ, ગુરુના દર્શન કરી આવીએ, વારા પરથી આપણે જઈ આવશું। हम पहला હું જાઉં ત્યાર સુધી ઠાकुरજીના श्रृंगार કરી ले, उसके बाद बहू जाके दंडवत करी आवे, ऐसा उन्होंने निर्णय किया था। तो अब बहू ने पूछा कि श्रृंगार तो मैं पहली बार कर रही हूँ, तो श्रृंगार ठाकुर जी के अच्छे हुए कैसा पता चलेगा? तो सासू माँ ने कहा जब ठाकुर जी मुस्कुराएं, ठाकुर जी जब हंसे ना, प्रभु को श्रृंगार करा के जब अपन आरसी दिखावें, तो ठाकुर जी जब हंसे उसका मतलब प्रभु को श्रृंगार बहुत अच्छे हुए। प्रभु के जब दर्शन करें ना, प्रभु अपन को हंसते हुए मुस्कुराते हुए जब दर्शन हुए, प्रभु जारे स्माइल आपता अपने जोता होय एवो जारे अपने दर्शन थाय, एनु मतलब श्रृंगार प्रभु ने बहु गम्या छे, ऐसे सासू माँ ने कहा। तो बहू ने श्रृंगार करने शुरू किए, ठाकुर जी के श्रृंगार किए, पहली बार श्रृंगार किए, फिर बहू ने प्रभु के दर्शन करे, देखे ठाकुर जी तो हंसता ज नहीं, प्रभु हंसता ज नहीं, एनु मतलब श्रृंगार सारा नहीं थया। बहुए काढ़ी लीधुं मतलब कि श्रृंगार सारा नहीं थया, बधा श्रृंगार पाछा वड़ा कर्या, बधा श्रृंगार पाछा वड़ा कर्या, वापस सब श्रृंगार करे, एक बार दो बार, फिर देखे ठाकुर जी तो हंसता ज नहीं। फिर वो रोने लगे, बहू रोने लगे, उनको दुख होने लगा कि सासू की सेवा प्रभु को पसंद है, मेरी सेवा तो पसंद नहीं है। वो दुख, उनको आरती दुख होने लगा। तो प्रभु ने ये देखा कि दुख हो रहा है, ऐसे 2 बार 3 बार करके 8 बार श्रृंगार करे ठाकुर जी के। बहू ने, क्योंकि भाव बहुत शुद्ध था, उनको ऐसा नहीं था कि नहीं हंस रहे, क्यों नहीं हंस रहे, पर उनको कहा ना हंसने चाहिए, तो भाई वो श्रृंगार कर रहे हैं बेचारे भोले बहू। तो प्रभु ने लगा कि अरे ये तो बड़े दुखी हो रहे हैं। तो क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा, क्लेश युक्त जब जीव होता है, जब दुखी होता है, तब प्रभु अपने जीव को देखकर तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसे देखा, तो फिर 8वीं बार जब आरसी दिखाई तो प्रभु तुरंत हंस दिए। तो ठाकुर जी जब क्लेश आरती होती है ना, दुख भावन विप्रयोग जब होता है, आरती जब होती है, तो प्रभु तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये गुणगान करने से दैन्यता आती है, और दैन्यता से फिर जब दुख भावन विप्रयोग करते हैं तो प्रभु के प्रागट्य का बहुत बड़ा कारण प्रभु प्रकट हो जाते हैं दुख भावन आरती से। तो जब वो होने लगता है, जैसे अपन कुम्मन दास जी की वार्ता भी आप सबको पता ही होगी, कुम्मन दास जी की वार्ता। एक दिन श्री गुसाई जी ने कहा कि अब परदेश जावे को है, सब देवी जीवों को अंगीकार करने के लिए भूवि भक्ति प्रचार एक, भूवि भूतल पर भक्ति का प्रचार करने के लिए आचार्य ने पृथ्वी परिक्रमा करी, सब स्थानों पे आप पधारे। तो गुसाई जी ने आज्ञा करी कुम्मन दास को, चलो कुम्मन दास। तो कुम्मन दास जी ने कही अच्छा जाना पड़ेगा, यहाँ रोज श्री जी के दर्शन होते हैं, कितना आनंद आता है, यहाँ प्रभु श्री जी को छोड़ के कैसे जाऊं। तो कुम्मन दास जी को तो जाना नहीं था, पर गुरु ने आज्ञा करी तो हमें तो जવું જ પડશે। तो कुम्मन दास जी साथे गया। अब वहां से श्रीनाथ जी मंदिर से निकल के आन्योर तक और आगे पहुंचे, इतने में शयन उत्थापन का समय हो गया, श्रीनाथ जी के उत्थापन का समय हो गया। वहां घंटानाद शंखनाद हुए श्रीनाथ जी के, कुम्मन दास हुए ऊंचे नीचे, अरे हवे तो उत्थापन नो समय थी गयो, और साइड में बैठ के रो रहे थे कुम्मन दास जी, दुखी हो रहे थे कि आज मेरे श्री जी के दर्शन एक समय के छूट जाएंगे, आज श्री जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे।
को दुख हो रहा था कुम्मन दास जी को। श्री गोसाई जी पधारे, उन्होंने देखे, अरे कुम्मन दास यहाँ बैठे रुदन करत हो, क्यों रो रहे हो कुम्मन दास, क्या हो गया? तो क्या श्रीनाथ जी के आज के समय के दर्शन चले जाएंगे? तो क्या, अरे तो तुमको इतनो विरह है, क्लिश्य मानान जनान दृष्टवा कृपा युक्तो यदा भवेत, तो तुमको इतनो विरह है तो वहां श्री जी के क्या हालत हो रही होगी, तो जल्दी जाओ और श्री जी के सन्मुख श्री जी की सेवा में पहुंचो। ये श्री गोसाई जी ने कही। तब जो कुम्मन दास जी है ना, उन्होंने दुख में एक कीर्तन गाया। कौन सा कीर्तन गाया? कहते दिन वहजू गए बिन देखे। कुम्मन दास जी ने ये कीर्तन गाया, कहते दिन वहजू गए बिन देखे। तो अरे अभी तो हमारा तो अनवसर समय में રાજભોગ આરતી કરીને આવ્યા હતા, હવે ઉત્થાપનનો સમય થયો, તો એ ઉત્થાપનના દર્શન મિસ થઈ ગયા ને, તો પણ એ લાગે છે કે કેટલા દિવસો નીકળી ગયા હોય ને કે શ્રીજીના દર્શન નથી કર્યા, તો કેતે દિન વહેજુ ગયે બિન દેખે, એવું લાગે છે કેટલા દિવસો નીકળી ગયા, યુગ સમાન પલ જાય। આમાં લલનામાં પણ એ જ વર્ણન છે કે નાગર પ્યારો નહીં દેખ્યો તો પલ समय कैसो जाए, युग समान पल जाए। तो ऐसा लगता है भक्तों को कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुआ तो युग समान पल जाए। तो कुम्मन दास जी तो ये पद गाया कुम्मन दास जी ने, ये कहते दिन वहजू गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंदन कछुक उठत मुख रेखे। तो ऐसे ठाकुर जी का जो मुखारविंद है उसके दर्शन कब करूं, कैसे करूं, ऐसा उनको इच्छा हुई। कुम्मन दास जी तो दौड़े मंदिर में, पर कुम्मन दास जी जा सकते हैं? श्री गोसाई जी को इतना विरह होता है तो वो जा सकते हैं क्या? श्री गोसाई जी नहीं जा सकते। वल्भाख्यान में आता है, विरह एकार्दनो विरहते युग समो। एकार्दनो विरह श्रीनाथ जी को केवल आधे समय का, मंगला यहाँ पे नवनीत प्रिया जी के कराए हो उतना विरह, और तुरंत आप जब घोड़े पे बैठ के तुरंग चाले वेगे उतावड़ो, जाने नौका चाली सिंधु तरवा, तो ऐसे दौड़ते हैं श्री गोसाई जी, क्योंकि श्री जी का इतना विरह हो रहा होता है। जब भी अनुकूलता मिलती है तुरंत श्री गोसाई जी श्री जी की सेवा में तत्पर होते हैं। तो पर भक्तों का उद्धार करना है ना, तो श्री गोसाई जी को कितना भी विरह हो, विरह युग समो दिवस एकार्दनो विरहते युग समो, एकार्दनो भी दिवस है ना, आधा दिन भी वो युग समान लगता है श्री गोसाई जी को। तो भी श्री गोसाई जी सब कुछ छोड़ के, ये सब आनंद, अलौकिक आनंद छोड़ के, अपने जैसे भक्तों के लिए खुले पैर आप सब कुछ त्याग करके भूतल पे पृथ्वी परिक्रमा करके हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है आपने। तो ऐसे कृपालु अपने आचार्य हैं, इसलिए तो श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, ये हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? बधु जेमना पासे बधो सुख छे ए बधु सुख छोड़ीने आप अपना माटे जीवोना उद्धार करवा माटे श्री गोसाई जी बधो छोड़्यू छे। तो दुख भावन अपन ने देखा कि ऐसा विरह, गोपालदास जी की वार्ता देखी, भोली बहू की वार्ता देखी, अपन ने कुम्मन दास जी की वार्ता देखी, ऐसा विरह होता है। और विरह जब होगा ना तो उसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप जो है वह त्याग है, कि अपने आप लोक जो है वह छूट जाएगा। जेम आपणे केम कहीए, जेम आपने बहु कोई वस्तुनो इम्पोर्टन्स होय ने, कोई वस्तु का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत जब कोई वस्तु की महात्म्य अपन को होता है तो जो दूसरी वस्तु होती है ना वो एनी में तेज भूलाई, अरे भूली गई है, याद न रही, भूलाई जाए, एनी में तेज भूलाई जाए, वो याद ही नहीं रहता है अपने आप। तो ऐसे ही जो त्याग है ना, फोर्थ स्टेप है ना, तो प्रभु से गुणगान करके दैन्यता जब आएगी, दैन्यता आके जब दुख भावन करेंगे, विप्रयोग होगा, प्रभु में जब आसक्ति हो जाएगी, गृहस्थानम बाधकत्वम अनात्मकत्वम च भासते। भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करते हैं महाप्रभु जी कि जो गृहस्थान है, जो घर है, गृहस्थाश्रम है, जो अहंता ममता सब लोग हैं वह अनात्मक लगेंगे कि ये मेरे नहीं है। जो लोग प्रभु से जुड़े हुए नहीं है ना वो लगेंगे ना ना हमारा नहीं, એવું લાગે, એવું કરવું નહીં પડે। એની મેતે अटैचमेंट ओછી થઈ जैसे कुम्मन दास जी को पूछा आपके कितने बेटे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, 1.5 बेटा है। 7 बेटे थे उनके, पर क्या कहा, 1.5 बेटा है। याद ही नहीं था, उन्होंने कोई जानबूझ के कोई गिनती नहीं लगाई थी कि 1 2 3 4 ऐसे गिना नहीं था, कि पर्पसफुली नहीं किया था उनको, क्योंकि चतुर्बुद्ध दास एक तो देखा उन्होंने, कृष्णदास चतुर्बुद्ध दास, तो उनको याद ही नहीं था कि मेरे दूसरे भी बेटे हैं, क्योंकि वो अनात्मक को लगने लग गए। आत्मा तो प्रभु है ना,
अपनी आत्मा जो है, अपने अंशी हैं, वो तो ठाकुर जी हैं। तो उनको अनात्मक लगने लगे, वो प्रभु से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको प्रायोरिटी ही नहीं रही, अपने आप वो भूल भूल गए, प्रायोरिटी नहीं रही। तो जिस चीज की अपन को प्रायोरिटी रहती है उसके बारे में सब याद रहता है, और जिस चीज की प्रायोरिटी नहीं हो अपने आप भूला जाता है। अभी आजकल लौकिक में अपन की प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले हम सब जो अपने लौकिक कार्य हैं જે આપણે રોજના કરવાના હોય, આ મીટિંગ છે, અહીં જવાનું છે, આને મળવાનું છે, આના લગ્નમાં જવાનું છે, અહીં બહાર ફરવા જવાનું છે, એ બધા જે કામ છે એને મુખ્ય ગણીએ, અને પછી ટાઈમ મળે તો લાસ્ટમાં છે ને સત્સંગ લખેલું હોય નાના અક્ષરે. તમારી વાત નથી કરતો, અહીં ઘણી જગ્યાએ એવું કરે બધા, એટલે એમની વાત કરું. તમે તો બધા જોડાઓ છો, તો લાસ્ટમાં છે ને નાના અક્ષરે સત્સંગ લખ્યું હોય. અચ્છા, આ કેન્સલ થયું, ઉપરનું 2-3 કાંઈ કેન્સલ થાય તો પછી હવે આમાં આપણે જરાક ટીક નાનકડું લગાડી શકાય એમ. એટલે નોર્મલી થાય બધી જગ્યાએ, એવું કરતા હોય બધા. લાસ્ટનું ટીક છે ને એ સત્સંગનું હોય, સેવાનું હોય, ગુરુના સન્મુખ થવાનું હોય. બાકી બધા મોટા મોટા અક્ષરે લખાયું ને એના ટીક હોય બધા. તો એ તો આપણી પ્રાયોરિટી ઉપર છે, એ તો પ્રાયોરિટી ઉપર છે कि गुणगान से दैन्यता, दैन्यता से दुख भावन, दुख भावन से प्रभु में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति से अपने आप लोकवेद का त्याग हो जाएगा. जैसे आसक्ति की अपन जब बात करें तो अपन ने कुम्मन दास जी की वार्ता तो देखी और देखा लोकवेद का त्याग. तो राजा मानसिंह की कथा भी आप सब देखते ही हैं. कुम्मन दास जी के कीर्तन सुने, राजा मानसिंह ने श्रीनाथ जी के जब दर्शन करने गए थे, कुम्मन दास जी के कीर्तन सुने, तो राजा मानसिंह को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि अब तो मुझे मिलना ही है कुम्मन दास जी से. तो कुम्मन दास जी के घर जाने लगे. अब कुम्मन दास जी के घर गए तो उसके पहले तो कुम्मन दास जी तो श्रीनाथ जी मिलने आए कुम्मन दास जी से. तो ત્યાં શ્રીનાથ जी પધાર્યા અને પધારીને ગોદીમાં બિરાજ્યા હતા શ્રીનાથજી, અને કુમ્મન દાસજી વાતો કરતા હતા કે આજે કઈ વનમાં જઈને લીલા કરવાની છે, ठाकुर जी ने क्या लीला करनी है और कुम्मन दास जी को क्या रोल है, क्या पार्ट है, वो वन में जाके डिसाइड करना था. तो वो सब बात बताने श्री जी आए थे. इतने में वहां हल्ला मचा, महाराज पधार रहे हैं, ऐसा हल्ला मच गया कि राजा मानसिंह आए हैं, सब सैनिक लोग आ गए, सब आवाज होने लग गई. तो श्रीनाथ जी देखा और श्रीनाथ जी तो पीछे जाके छुप गए. अब राजा मानसिंह के लो पैसा ले लो, वो के जड़ाओ आरसी ले लो. राजा मानसिंह दे सब दे रहा था, आपको घर दे दूं, आपको आरसी दे दूं, पैसा दे दूं. तो क्या, अरे भाई तू जान है. तो फिर कहा कि अच्छा कुछ नहीं चाहिए तो आप मांगो, क्या चाहिए. कुम्मन दास जी ने कही भाई मेरे आप ये दे दो मुझे कि अगली बार यहां मत आना. आप जिसको प्रभु में जिसका मन लग गया है तो अन्य न सुहाए हो, और कुछ नहीं अच्छा लगता है. तो जब आप अन्य जब आपको अच्छा लगने लग जाता है ना, तो ठाकुर जी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, दूर प्रभु खड़े हो जाते हैं कि ये भाई प्रभु पास नहीं आएंगे. विषयाक्रांत जो जीव है ना, जो जी विषयाक्रांत है, उनमें आवेश प्रभु का नहीं होता है. तो अपन को गुणगान, दैन्य से दुख भावन से आसक्ति, और फिर आसक्ति जैसे ही प्रभु में हो जाएगी तो अनात्मकत्वम च भासते, गृहस्थानम बाधकत्वम, बाधक लगने लगेगा. आज नड़े छे अमने, आज बीजू बधु छे ने लौकिक नड़े छे एवं लागवा लागे धीरे धीरे. तो अनात्मकत्वम च भासते. ऐसे अगर एक और वार्ता देखनी हो तो राजा आस्करण की वार्ता देखो. सब कुछ त्याग कर दिया राजा आस्करण ने. राजा थे, राजकार्य भी किया उन्होंने अच्छे से, फिर उसके बाद वह सब कुछ छोड़ के व्रज में आ गए. राजा आस्करण जो हैं वो सब कुछ छोड़कर वो व्रज में आ गए. राजा आस्करण फिर व्रज में ही घूमने लगे, व्रज में ही प्रभु की लीला के दर्शन होते और प्रभु की लीला के दर्शन करते, और वहीं श्री गोसाई जी के सन्मुख होते और बस दर्शन करते, नवनीत प्रिया जी के दर्शन करते, श्री जी के दर्शन करते, वहाँ व्रज के स्थलों में घूमते रहते. ऐसे ही लीला का अवगाहन करते. वैराग्य आता है ना अपने यहाँ, जो व्रज यात्रा इत्यादि का जो प्रकार होता है ना, वो इसलिए होता है कि वी हैव सो मच अटैचमेंट, वी हैव સો મચ અટેચમેન્ટ ઇન લૌકિક જે વસ્તુઓ છે, મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુઓ છે, એમાં એટલી બધી આપણને અટેચમેન્ટ હોય છે કે છોડીને બહાર જ નથી જવાતું, એનાથી બહાર જ નથી. આપણે એમ કહીએ ના અમે તો ઘરમાં સેવા કરીએ, ઘરમાં સેવા કરો છો પણ તમારું ભાવ હજી ગયું નથી. કેવું ભાવ જવું જોઈએ? જે આસક્તિનો ભાવ છે ને એ નીકળવી જવું જોઈએ ને. તમને શું છે, ના આ તો મારું ઘર છે, મારું હોલ છે, મારું બેડરૂમ છે,
એમાં બેડરૂમમાં જરાક એક નાનકડી જગ્યા આપણે પ્રભુ માટે આપવી જોઈએ, સેવા તો કરવી જોઈએ, પણ આપણું જે અટેચમેન્ટનું ભાવ છે ને એ ગયું નથી. એટલે આપણે થોડા થોડા સમયો પર આપણા ઘરથી બહાર નીકળી જઈએ ને, ત્યાં કે વ્રજ સ્થાનોમાં જઈએ, કે આપણા જ્યાં મંદિરો હોય ત્યાં જઈએ, કે વૈષ્ણવો સાથે આપણે ક્યાંક બહાર જઈએ, સત્સંગ આપણે કરીએ, એનાથી શું થાય, જે અટેચમેન્ટ હોય ને, ભોગ બુદ્ધિ, આપણા ઘર માટે જે મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુને ભોગવાની બુદ્ધિ હોય એ ધીમે ધીમે નીકળે. તો એ કરવું જરૂરી છે થોડા થોડા સમયમાં, તો એ અટેચમેન્ટ છૂટી જાય, ધીरे धीरे निकले, ओछू થાય, तो वो जरूरी है बहुत. तो एवी रीते ज ये आस्करण तो उनको तो मानसी सिद्ध थी, तो प्रभु सब सर्वत्र सर्वात्म भाव भक्ति की उत्कृष्ट अवस्था उनको सिद्ध हो गई थी आस्करण को. त्याग, इसलिए सब कुछ त्याग दिया था. तो ऐसे ही वह व्रज में घूमते रहते आस्करण राजा. एक बार की बात है, चौथा प्रसंग देखना आस्करण राजा का वार्ता में. तो होली के दिन थे, होली के दिन आए थे, तो राजा आस्करण जो है वह गोकुल में थे, गोकुल से है ना गोप कुआ के पास थे. वहां से वह स्नान करने यमुना जी में जा रहे थे, यशोदा घाट पे स्नान करने जा रहे थे, यशोदा घाट पे. अब वो यशोदा घाट पे जा रहे थे, वो ऑलमोस्ट पहुंचे थे, इतने में प्रभु के वेणुनाद का आवाज सुनाई दिया राजा आस्करण को. ब्रज जो है नित्य लीला का स्थान है प्रभु का, तो वेणुनाद का आवाज सुनाई दिया राजा आस्करण को. तो वह आवाज को फॉलो करते करते राजा आस्करण रमण रेती तक आ गए. रमण रेती तक राजा आस्करण आ गए. वहां आके देखें राजा आस्करण क्या देखें, एक तरफ जो है वह वहां स्वामी जी श्री राधा जी अपनी सब सखियों के साथ, होली के दिन थे ना, तो 4 रास्ता था, चौराहे पे आ गए, 4 रास्ते आगे गए. जब वो रमण रेती के पास, तो 4 रास्ते के पास आए, प्रभु ने वेणुनाद किया, वेणुनाद को देखा और फिर लीला का दर्शन होने लगा राजा आस्करण को. तो 4 रास्ते के पास आए और तब देखें कि एक तरफ तो स्वामी जी अपनी सब गोपियों के साथ खड़े हैं पिचकारी लेके, एक तरफ जो है नंद बाबा और यशोदा जी अपने सब सखाओं के साथ नंदगाम की तरफ से खड़े हुए हैं. एक तरफ 4 रास्ते में देखे तो ठाकुर जी अपनी पिचकारी अपने गोपों के साथ लेके खड़े हुए हैं. एक तरफ बलदेव जी खड़े हुए हैं अपने सब बड़े बड़े, सब बलदेव जी तो बड़े हैं ना, तो गोप भी सब उनके बड़े बड़े थे, वह सब खड़े हुए हैं एक तरफ. ऐसे दर्शन उनको हुए. तब उन्होंने ये जो कीर्तन हम गाते हैं ना, बहुत प्रख्यात पद है, फागन में गाते हैं, या गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल. ये कीर्तन बड़ा सुंदर आता है वसंत में, तो ये अपन गाते हैं कि या गोकुल के चौहटे रंग राची ग्वाल, मोहन खेले फाग नैन सलोनेरी रंग राची ग्वाल. ऐसा कुछ ये कीर्तन गाते हैं. तो उनको यही दर्शन हुए कि चारों तरफ प्रभु के दर्शन हुए, तो वो बड़े आनंदित हुए ऐसा दर्शन करके. तो ये त्याग, सब त्यागने के बाद सर्वात्म भाव का जब सिद्धि हो जाती है, तो सर्व स्थान पे प्रभु के दर्शन होने लगते हैं. तो ऐसा ये गुणगान दैन्य दुख भावन से फिर लोकवेद का त्याग होके और फिर प्रभु के ऐसे लीलाओं का दर्शन होता है. तो दर्शन करने के बाद दोपहर को फिर जब उन्हें दर्शन हो गए, फिर उसके बाद उनको जब ध्यानोसंधान आया, तब वो फिर स्नान करके दोपहर को गए श्री गुसाई जी के सन्मुख. तो श्री गुसाई जी ने पूछा कि अरे राजा आस्करण आए, रोज तो सुबह मंगला करने आते हो, रोज तो सवारનું તમારું નિયમ છે મંગલા માટે આવો છો, આજે ક્યાં છો, ક્યાં હતા આજે? तब राजा आस्करण ने कहा कि आज तो वहां दर्शन हुए, ठाकुर जी के रमण रेती से मुरली की आवाज सुनाई दी. तो जब मुरली की आवाज सुनाई दी तो मैं वहां गया, वहां ठाकुर जी की ऐसी ऐसी लीलाओं के दर्शन हुए. तो फिर श्री गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए. यह सुनी के श्री गुसाई जी कहे, जो प्रभु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुई, कृपा करी के दर्शन दिए हैं, प्रभु प्रसन्न होकर कृपा करी के दर्शन दिए हैं. सो यहाँ नित्य विहार करत हैं, ब्रज में प्रभु नित्य विहार करत हैं. अपने चाहे ते मिले नहीं है, अपनी इच्छा से प्रभु नहीं मिलते हैं. अपने इच्छा से तब जब आपके मन में होए तभी दर्शन देते हैं. प्रभु के मन में जब होता है प्रभु तभी दर्शन देते हैं. दर्शन होंगे तो तुम्हारो हृदय शुद्ध है, दीनता की भावना है, हम्बलनेस है, दुख भावन है, गुणगान किया है, इसलिए हृदय शुद्ध है. यह सुनी के आस्करण ने दंडवत करी, विनती करी, महाराज यह सब आपके चरण कमल को प्रताप है कि श्री गुसाई जी की कृपा है, इसलिए ये सब अनुभव हमको हो पा रहे हैं. तो श्री गुसाई जी का अनुग्रह है, उसके बिना ये सब
शक्य नहीं है। तो ये अपन ने आज 4 स्टेप्स अपन ने देखे भक्ति दृढ़ केवी रीते थाय। तो गुणगान, सेवा में गुणगान, सेवा के अनवसर में गुणगान, जो भी आपसे निप पाए, यथा अधिकार, यथा समय जेटली अपनी शक्ति, जितना भी सेवा प्रकार अपन कर सकें। पर इसमें भार कहाँ ज़्यादा दिया, क्योंकि मेनली આપણું જે ટાઈમ છે ને એ સેવાના અનવસરમાં વધારે જાય છે। 24 hours when you count, out of 24 hours how many hours you have allotted to સેવા, એ જ્યારે કાઉન્ટ કરશો તો તમને ખબર પડશે કે હાર્ડલી 1.5-2 hours મેક્સિમમ, એનાથી વધારે તો આપણે અલોટ નથી કરી શકતા। અને એના અતિરિક્ત જે આપણો ટાઈમ છે સુવામાં, ખાવામાં અને આટલા બધા નવા લોકોથી રોજ મળવામાં જે જાય છે, તો એનું ઇન્ફ્લુએન્સ એ લોકોના સંગમાં આપણે આવીએ છીએ। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा जो टाइम जाता है ना, 10-12 घंटे का जो दूसरा जो टाइम है ना, उसके लिए आज मैंने सेवा के अनवसर में मेनली अपन को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो જે કચરો વધારે હોય ને, એ બારી વધારે આપણે ખુલ્લી રાખીએ ને બહુ વાર સુધી, ત્યારે જ એ કચરો અંદર ઘૂસતો હોય છે। तो वो अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्लीनिंग का काम ये सब करता है। गुणगान मेनली जो है ना क्लीनिंग का काम करता है। तो सब अपने दोष दूर हो जाते हैं। तो अपन ने मेन 4 स्टेप्स देखे। आपको कुछ प्रश्न हो तो भी आप अवश्य पूछ सकते हैं। और મને ગમ્યું એમ તો અમે 2 વર્ષ પહેલાં ત્યાં આવ્યા હતા, લેસ્ટરમાં આવ્યા હતા, નોટિંગમમાં પણ અમે આવ્યા હતા। તો બધા અમુક વૈષ્ણવોથી મેળાપ અને મળ્યા તો હતા જ, ખૂબ આનંદ થયો। તો ફરી પાછા મળીને અને બીજા બધા જેમને નહોતું મળી શક્યા, जिनसे नहीं मिलना हुआ था, उनसे आज हम यहाँ पे ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से मिले हैं। तो इसमें भी आज बड़ा सुंदर आनंद हुआ। અને કોઈક બીજા કાંઈક તમને કંઈ પૂછવું હોય, કાંઈક તમને તમારી કેવું લાગ્યું આમાં, એ તમને કંઈ કેવું હોય, તમારા રિએક્શન્સ જણાવવા હોય તો એ પણ તમે મને જરૂર કહી શકો છો। એમાં કંઈ ચિંતાની વાત નથી। તો બસ આટલું જ કહીને મારું આજનું જે સત્સંગ અને વક્તવ્ય છે અહીંયા ઠાકુરજીના ચરણ કમલમાં હું અહીંયા સમર્પિત કરું છું। અને ખૂબ આનંદ થયો ફરી પાછું આજે બધા વૈષ્ણવોથી મળીને, અને કાંઈક જીવ્યા 2 ઘડી, કાંઈક જીવ્યા અને પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું। બસ તો આટલું કહીને અહીંયા વિરામ લઉં છું।